Right. Next heading maximum height attained by a projectile. Maximum height attained by projectile. So when we throw any particle from the earth surface, then it rises up to certain height, and after attaining a certain height, it returns back to the earth surface. So suppose we project a particle with velocity u, okay. Then it go in upward direction, and acceleration due to gravity, velocity direction of velocity is in upward direction, and acceleration due to gravity is downward. Direction of acceleration due to gravity is downward. So acceleration opposite the acceleration due to gravity opposite the upward motion, that is g acts as a retardation for this motion. G acts as a retardation for this motion, so its velocity reduces, okay, and become zero at certain height, and then it stops momentarily and return back to the earth surface. Okay. When you project the particle with larger velocity, then it attains greater height, and then its velocity becomes zero, and then it returns back. So as you increase its velocity, its height attained by this particle increases, okay, and and after attaining a certain height, it's back to the earth surface. So let particle is projected with velocity u. Particle is projected with velocity u. Then what is height attained by this particle? We have to derive. Okay. So let one particle of mass m, small m, projected with velocity u. Then this particle attains height h. This particle attains height h. Okay. After attaining height h, its velocity becomes zero. Then h is the maximum height attained by the particle. H is the maximum height attained by the particle. So what is the expression for this height? We have to derive an equation. Okay. इसके height दिखाना मुझे. Height. So when you project a particle with velocity u, then its velocity reduces and height increases, and at certain height its velocity becomes zero, or this height is the maximum height attained by the particle. So let particle loses its velocity at this point B. So at this point its velocity becomes zero. Okay. And this becomes maximum height attained by the particle. So what happened in this motion? In energy change. ठीक है. तो एनर्जी चेंज में इस क्या होगा बताइए? इस मोशन में एनर्जी चेंज क्या होगा? देखिए, when particle is at position A at the earth surface, when particle is at the earth surface at position A, then it has potential energy only. When particle is at the earth surface at position A, then it has potential energy only. So its potential energy at the earth surface is given by, देखिए when particle is at earth surface at voltage, then total mass of the earth can be considered to be concentrated at the center of earth, Me. So one mass particle become mass of the earth. One mass particle become mass of the earth, Me, which is located at the center of the earth. Another mass particle is at the surface at position A, and distance between these two mass particles is equal to radius of earth. Distance between these two mass particles is equal to radius of earth, है ना? तो ये आपका डिस्टेंस हो गया आगे.
when particle is at position A, ना, तो it has potential energy. It has potential energy. So what is magnitude of potential energy at position A? UA equal to minus G mass of the earth into mass of the mass particle upon distance between them. So distance between this center of two mass body is R in position A, ना. So UA is equal to minus GMEM upon R. This is the potential energy of mass particle at the surface of Earth. When it has rise and gain position B, when it has gain position B, ठीक है, when you project it with velocity u, then its potential energy has increased. इसकी potential energy क्या होगी बताओ? बढ़ जाएगी, है ना? ठीक है, नेगेटिवली कम हो जाएगी. जब नेगेटिवली कम हो जाएगी तो कहेंगे बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जैसे -3 ग्रेटर देन -10. -3 क्या मतलब -10 से ग्रेटर है ना, हाँ. तो जब कम आने मतलब से -3 आ गया, हाँ, तो -3 आगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी. जब हाइट पर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास पार्टिकल एट पोजीशन बी क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास पार्टिकल एट पोजीशन ए. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास पार्टिकल एट पोजीशन ए. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास पार्टिकल एट ए. अब हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of mass m at height h. तो height h पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माने at position b इक्वल टू माइनस g m e m, ठीक है, अपन r प्लस h हो जाएगा, क्योंकि आप डिस्टेंस जो है आपका r प्लस h हो गया. मास पार्टिकल आपका यहाँ पहुँच गया. जब यहाँ पहुँच गया तो इतना तो आ रही है, ये डिस्टेंस क्या आ रही है, वो ये आ रही है, ये भी एच है. अब इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर प्लस एस हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, आर प्लस एस ना, इसलिए यहाँ पर आर प्लस एस हो जाएगी, ठीक है. तो व्हिच एनर्जी इज ग्रेटर, यूए और यूबी, व्हिच इज ग्रेटर? ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, कौन ज्यादा है? यूबी ज्यादा है. क्यों ज्यादा है, क्योंकि आर प्लस एस इज ग्रेटर देन दिस ना. आर प्लस एस क्या आर से ग्रेटर है. तो व्हेन एनी क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय बिगर नंबर्स, ग्रेटर नंबर, देन यू गेट स्मॉलर नंबर ना, ठीक है. तो ये स्मॉलर नंबर होगा, माने नेगेटिवली स्मॉल है, ये क्या है, नेगेटिवली लार्ज है ना. तो नेगेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन नेगेटिवली लार्जर क्वांटिटी, हां, इसलिए ये वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी ना. तो व्हेन पार्टिकल गो फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, then it gain potential energy. When particle go from A to B, then it gain potential energy na. So potential energy gained by particle in rising from A to B na. So potential energy gained by particle, potential energy gained by particle when it rises from A to B, when it rises from A to B, A से B तक जब राइज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा, डेल्टा U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A ना. पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ये हो जाएगा. तो राइट वैल्यू तो माइनस G MEM upon R plus S, फिर माइनस GMEM upon R, है ना. तो इसमें क्या करते हैं, GMEM कॉमन ले लेते हैं, तो क्या माइनस GMEM upon R plus S प्लस GMEM upon R, है ना, ठीक है. अब क्या करते हैं, GMEM बाहर ले लेते हैं, तो GMEM बाहर ले लीजिए, तो 1/RA माइनस 1/GMEM
एच, ये हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा यू इक्वेशन हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू हो गया जी एम ई एम टेक एलसीएम देन आर ए प्लस एच माइनस आर ए अपॉन आर ए इंटू आर ए प्लस एच, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो आर ए से आर ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा यू यू इक्वल टू हो गया जी एम ई, अच्छा जी एम ई एम एच अपॉन आर ए प्लस एच, है ना। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बताइए। स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, क्या नहीं पता भाई, हमने पढ़ा नहीं क्या, पढ़ा नहीं स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन, तो याद क्यों नहीं किया, क्यों करिए भाई। ये देखिए स्मॉल जी कितना होता है, स्मॉल जी जी एम ई अपॉन आर ए स्क्वायर, ये होता है ना। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, हैं देखिए उसको देख लीजिए, जी ये क्या लिखा है उसके, देखो क्या लिखा है, स्टैंड अप क्या लिखा है, मतलब नहीं आप खड़े हो जाइए, बच्चे नहीं उतार देंगे। ये बताइए क्या लिखा हुआ है, जी इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर लिखा है, हैं। तो क्या चीज है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, क्या चीज है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी ना। रिलेशन बिटवीन, जैसे पूछे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, क्या बताइएगा, स्मॉल जी, हैं। If anyone asks that what is relation between small g and capital G, then what is your answer? जी एम ई G is equal to, बोले पूरा बोलेंगे, G is equal to आगे जी इक्वल टू जी एम G M E आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन आर स्क्वायर, तो अपन कहाँ बोले तुमने, हैं। फिर से बोलिए M E क्या चीज है, व्हाट इज M E, क्या चीज है, मास अपॉन आर क्या है, व्हाट इज आर, क्या रेडियस अपॉन, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी क्या चीज है, व्हाट इज स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या चीज है, एक्सीलरेशन, ठीक है चीज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास ऑफ अर्थ, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ ना। चलिए क्या चीज है, क्या चीज है, एक्सीलरेटर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन होता है, और ये एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या पढ़ते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या चीज है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या चीज है, मास ऑफ अर्थ, ये क्या चीज है, रेडियस ऑफ अर्थ ना। तो if someone asks what is relation between small g and capital G, then what is your answer, g is equal to capital G m e upon r square, है ना, ठीक है। अब यहाँ से g m e की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ g m e की वैल्यू क्या हो जाएगी, g m e इक्वल हो जाएगा g into r square ना। write this value here, write this value in this equation ना, then you get delta u is equal to g into r square। देखिए जी एम ई के प्लेस पर हम क्या लिख दे रहे हैं, बताओ जी एम ई के प्लेस पर हम जी आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और एम एच अपॉन आर ई इनसाइड ब्रैकेट आर ई प्लस एच, है ना, ठीक है। तो आर ई से आर ई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एम जी एच अपॉन आर ई प्लस एच, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी gained by projectile
when go from A to B, when go from A to B, है ना? ठीक है। अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से इसको मिलेगा बताइए? हैं? when you project, इधर देखो, देखना बाद में इसको पहले इधर देखो। when you project particle with velocity u, जब पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं आप? काटिंग एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? काटिंग एनर्जी ना। ये काटिंग एनर्जी किससे बदल रही है? पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। काटिंग एनर्जी जा रही है पोटेंशियल एनर्जी ना, ठीक है। तो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड ना। तो जो भी एनर्जी आप काटिंग एनर्जी आपने यहाँ पर दिया वो किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, है ना, ठीक है। तो और यहाँ पर काटिंग एनर्जी क्या होगी? जीरो। यहाँ पर काटिंग एनर्जी क्या होगी? जीरो। यहाँ पर काटिंग एनर्जी क्या होगा? हाफ एम यू स्क्वायर। If any particle of mass m has velocity u, then its starting energy given by अगर किसी मास पार्टिकल एक किलो वाले रुको तो किलो वो आ जा अभी दिक्कत नहीं कोई वापस चला गया। when you projected mass m with its velocity u, then its static energy reduces and potential energy increases, ठीक है। at point B its static energy has become zero and potential energy, its total static energy has changed into potential energy ना, ठीक है। तो kinetic energy kinetic energy किसके बराबर है? kinetic energy imparted to projectile at point A, kinetic energy imparted to projectile at point A, to projectile at point A। तो point A पर जो आपने kinetic energy दिया है किसके बराबर दिया बताओ? कितना दिया है? हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर ना, ठीक है। And from conservation of energy, this kinetic energy has changed into potential energy। ये kinetic energy क्या होगी बताओ? potential energy बदल गई है ना, ठीक है। तो from conservation of energy क्या हो जाएगा? from conservation of energy, conservation of energy, तो conservation of energy से क्या मिल गया बताओ? kinetic energy gained by projectile is equal to potential energy, sorry, kinetic energy lose by projectile is equal to potential energy gained by projectile ना। kinetic energy lose by projectile is equal to kinetic energy potential energy gained by projectile, है ना, ठीक है। तो kinetic energy lose by projectile किसके बराबर है? हाफ एम स्क्वायर ना, ठीक है। और kinetic potential energy gained by projectile किसके बराबर है? आपने ये निकाला है mgh अपॉन mgh अपॉन r प्लस h, ये निकाला ना, ठीक है। तो m से कैंसिल हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन r प्लस h ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? r प्लस h इज इक्वल टू 2gh अपॉन u स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ये इसके वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है, तो क्या लिखेगा? r इज इक्वल टू 2gh अपॉन u स्क्वायर माइनस h, ठीक है। यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा? r इक्वल टू h कॉमन ले लेते तो हो जाएगा 2g अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 इंटू h हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा r इक्वल टू 2g माइनस u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर r अपॉन u स्क्वायर अपॉन r
upon 2g minus u square. ठीक है, तो this is the maximum height gained by the projectile. Maximum height gained by the projectile. Here one call left, है? ठीक है, तो ये चलो कॉपी कर ले, ले देख ले कॉपी। कितना लिखा हमने? एच यू स्क्वायर आर ई 2g यू स्क्वायर फिर से देख ले, जो बिलो पेपर पर वही लिखा है, वही लिखे। हाँ हैं? लिखे रुका ना, वो तो नहीं लिखा, फिर से बोल ले, वही लिखे। स्टेप में ले लास्ट के, स्टेप वही है। फिर से मिलाओ, वही वही कह रहा हूँ, गलत लिखा है, क्या गलत लिखे बताओ। देख लो मिलाओ, कहाँ क्या गलत लिखा है मिलाओ, बैठ करके इतना से मिलाओ लास्ट के, यहाँ से मिलाओ, यहाँ यहाँ से मिलाइए, क्या चीज से यू स्क्वायर 2g सही हो गया। अब देखिए, तो ये हाइट हो गई, दिस इज द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड विद स्पीड u। u स्पीड से अगर आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल ये हाइट गेन करेगा ना, ठीक है। तो हमको जो है, हम प्रोजेक्टाइल को किस स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि ये जो है रेडियस ऑफ आर्च के इक्वल हाइट अटेन कर ले, विद व्हाट velocity a projectile is projected so that it attain height equal to radius of arc। आपका क्वेश्चन क्या है बताओ? व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन नहीं, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल your question is what is velocity of projectile to attain height equal to radius of arc? What is velocity of projectile to attain height equal to radius of arc? ना, आपको वो वेलोसिटी बताना है जिस वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तो प्रोजेक्टाइल क्या करता है, मतलब रेडियस ऑफ आर्क के बराबर ऊपर चला जाए ना, ठीक है। तो with what speed, with what velocity a projectile is projected to gain height equal to radius of arc, ये चीज निकालना मुझे, ठीक है।
तो देखिए एच इक्वल टू कितना कितना लेना है मुझे, रेडियस ऑफ आर्क हमको उस स्पीड से प्रोजेक्टेड को प्रोजेक्ट करना है ऊपर वोट के ऊपर। ये जो है रेडियस ऑफ आर्क दैट इज 370 किलोमीटर ऊपर चल रहा है। कितना चला जाए, 370 किलोमीटर हाइट पर चला जाए ना, ठीक है। रेडियस ऑफ आर्क कितना होता है, 370 किलोमीटर है। जैसे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो सर्टेन हाइट पर जाकर क्या होता है वो तो सर्टेन हाइट गेन करके फिर वापस हो जाता है ना। तो आप वेलोसिटी बढ़ाते जाइए इतनी वेलोसिटी आपको बढ़ाना है कि प्रोजेक्टाइल आपका किस हाइट तक जाए, 370 किलोमीटर तक इतनी हाइट गेन करना है। तो वेलोसिटी आपको डायरेक्ट करना, ठीक है। चलिए देखिए तो इसके लिए क्या करिएगा, तो इस इक्वेशन में जो है ये वेलोसिटी इक्वेशन है हमारा वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी टू गेन height equal to h, this is the velocity of projectile to gain height equal to h ना। अब हमको हाइट कितना गेन कराना है, रेडियस ऑफ आर्क के बराबर गेन कराना है। किसके बराबर कराना है, रेडियस ऑफ आर्क के बराबर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल to attain height h, to attain height h, height h attain करने के लिए आप कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं बताइए। u स्क्वायर इक्वल टू 2g re, कितनी हाइट दे रहे हैं, 2g h re अपॉन re प्लस h, ठीक है। h हाइट गेन कराने के लिए प्रोजेक्टाइल को आप u वेलोसिटी दे रहे हैं ना, ठीक है। और तो आगे के बराबर हाइट गेन कराना, टीएस के प्लेस पर आगे रख दीजिए। टीएस के प्लेस क्या करेंगे तो इसमें आगे रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 2g इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस आर ई, है ना। तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2g आर स्क्वायर अपॉन 2r 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू g आगे हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक और लेस हो जाएगी यहाँ पर। तो इस टाइप से u इक्वल कितना हो जाएगा, u इक्वल टू स्क्वायर रूट g r, u इक्वल टू स्क्वायर रूट g r, है ना, ठीक है। तो दिस इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू देयर सरफेस ना। ये क्या है बताओ, स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू देयर सरफेस, है ना। तो सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू देयर सरफेस क्या है बताइए, स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू देयर सरफेस कितना होता है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होती है बताओ, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड ना। सैटेलाइट व्हिच रिवॉल्व वेरी क्लोज टू देयर सरफेस की वैल्यू क्या है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। इस तरह से अगर किसी पार्टिकल को जो है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करिएगा ना, इफ एनी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड with velocity 7.9 km per second है, then it attain height equal to radius of arc है। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को जो है अर्थ सरफेस से वर्टिकली क्या करेगा, तो वर्टिकली 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड कर दीजिए हाँ। इफ एनी पार्टिकल इज इम्पार्टेड टू स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड, देन इट अटेन हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ आर्क। कितनी हाइट गेन करेगा, मतलब रेडियस ऑफ आर्क के बराबर हाइट गेन करेगा, है ना। लेकिन अगर इसी स्पीड से हम क्या करें, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये अर्थ के चारों ओर घूमने लगेगा, अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, घूमने लगेगा, है ना, ठीक है। चलो फिनिश।